بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، عشاء کے بعد سے مستقل ہم اپنے معزز علماء کرام کے ایمان افروز خطاب سن رہے ہیں، اور ابھی مہمان خانے میں بھی بہت سے علمی اور ادبی شخصیات اور روحانی ہستیاں بھی موجود ہیں. ہمیں ان سب سے مستفیض ہونی ہے. بس کچھ دیر آپ کے سامنے میں رہوں گا انشاءاللہ، پھر ہم سب اپنے معزز مہمانان کرام سے مستفیض ہوں گے. سامعین محترم، آج کا یہ جو جلسہ ہے جس میں قوم کے معصوم اور نونہالوں کے سر پہ ہمارے اکابر علماء کرام دستار فضیلت رکھیں گے، ان کے سر پہ جو ابھی پگڑی باندھیں گے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. یاد رکھیے، علم یہ وہ دولت ہے جو انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو رہی ہے اور تقریباً 550 یا 650 سال کے لمبے وقفے کے بعد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کہیے یا عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، اس کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یا نبوت تک کا جو وقفہ ہے وہ 570 یا 71 سال کا ہے. تو اس ایک لمبے عرصے کے بعد زمین اور آسمان کا رشتہ بن رہا ہے، جڑ رہا ہے. یعنی 570 سال یا 550 سال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے زمین پر پہلی بار آ رہے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ کلمے کا حکم ہونا چاہیے تھا، نماز کا حکم ہونا چاہیے تھا، روزے کا ہونا چاہیے تھا. علماء کرام تشریف فرما ہے. سب سے پہلی وحی جو آ رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سب سے پہلا حکم جو لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے. یعنی ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ کا پیغام زمین پر آ رہا ہے اور لوگوں کو اللہ کا حکم ایک لمبے عرصے کے بعد مل رہا ہے. تو آپ جانتے ہیں جب کوئی ایسا پیغام ایک لمبے عرصے کے بعد جب دیتا ہے، کسی کو کوئی حکم دیتا ہے، تو وہ حکم دیتا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہو. اور قرآن کے اندر اللہ نے 550 سال کے بعد جو حکم نازل کر رہا ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل کر رہا ہے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون بھی کہہ سکتے تھے، نماز کے بارے میں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ علم جو ہے، یہ علم جتنی بھی عبادات ہے، جتنے بھی طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، جتنے بھی انسانیت کے مراحل ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو، بغیر علم کے نہ تمام ہے
रहे हैं। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहला हुक्म दे रहा है मुसलमानों को पढ़ने का। जंगे बदर होता है, मुशरिकीन कैद किए जाते हैं। उस वक्त मुसलमानों का हाल यह था कि मुसलमानों के घर में फाके हो रहे थे। कई कई दिन गुजर जाता था, चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए था क्या कि लोगों पर एक लंबा एक मोटा जिजिया आयद करते और उनसे टैक्स वसूल करके मुसलमानों की इमदाद करते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आप में से जितने कैदी हो, अगर तुम में से कोई पढ़ा लिखा है तो वो किसी मुसलमान के, किसी अंसारी के बच्चे को पढ़ा दे और वो छुटकारा पा ले और छुटकारा हासिल करके वो घर चला जाए। इन सारी बातों के बावजूद हजरत तशरीफ फरमा है एक शागिर्द की हैसियत से। इन सारी बातों के बावजूद आज पूरी दुनिया के अंदर आप अगर जायजा लेंगे तमाम अक़वाम का, तो आपको सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ और सबसे ज्यादा नाखानदा और सबसे ज्यादा पसमानदा पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई कौम नजर आएगी तो वो यही कौम मुस्लिम है। क्यों? इसलिए कि हमने इल्म से नाता तोड़ लिया। याद रखो मुसलमानों, अगर आप सरबलंदी चाहते हो, अगर आप भी चाहते हैं कि हमें इज्जत और सरबलंदी मिले, तो आपको इल्म के मैदान में आगे आना होगा। और हमारी माँ बहनें जो है वो भी गौर से सुन लें। आज वो अपने शौहर से फाखिरा लिबास का मुतालबा करती है, ज़ेबो ज़ीनत और आराइश के सामान का मुतालबा करती है, लेकिन वो अपने शौहर से यह मुतालबा नहीं करती है कि मेरे शौहर हमारे जो लाडले हैं, अल्लाह ने जो नौनिहाल हमको दिया है, हमारे जो फर्जंद है, उनकी तालीम का, उनकी तरबियत का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ। इसलिए आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप नमक रोटी खा लीजिए, फाके पे फाका कर लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को इल्म की दौलत से माला माल जरूर कीजिए। ये जो इदारे हैं, जहां मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब ने जो मदरसा खोला है, इसको आप आसान मत समझिए। अगर आपके ज़हन और दिमाग के अंदर है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मफलूज होता है, नाकारा होता है, निकम्मा होता है, उसके अंदर दुनिया के लिए कोई जो है कि उसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं होता है, तो याद रखिए आप खाम ख्याली में है। ऐसे ऐसे उलमाए किराम और ऐसे ऐसे आलिम दीन हैं जिन्होंने कभी भी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, लेकिन असली लिहाज से ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि जो शायद ही कोई असली तालीम हासिल करने वाला दिया हो। मैं आज तक मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, कभी भी स्कूल में जाकर एक हर्फ नहीं पढ़ा हूं, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि एक सरकारी इदारे के अंदर, वो भी घूस से नहीं, कंपटीशन पास करके जॉब कर रहा हूं। मेरा एक जो है भतीजा है, नदवी बना, जो है कि अलीगढ़ गया, नेट निकाला, अभी जीआरएफ निकाला है। क्या समझते हैं आप मदरसे के बच्चों को? और याद रखो, ये वो कुर्सी है, तुम दौलतमंद हो सकते हो, तुम्हारे पास जायदाद की कसरत हो सकती है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस का जो है कि भरमार हो सकता है, लेकिन तुम्हें इस कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं है। अगर एक बच्चा फकीर का है, मोहताज का बच्चा है, उसके घर में चूल्हा जलाने की वसअत नहीं है, उसके बाप की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर उसने अपने आप को ज़ेवरे इल्म दीन की तालीम से सजाया है, तो आज इसका मुस्तहिक वो होता है। हमारे उस्ताद जनाब हजरत मौलाना अजमतुल्लाह साहब नदवी, मैं उनका वाकया सुना करके बात मुकम्मल करूंगा। मौलाना अजमतुल्लाह साहब नदवी जो हमारे उस्ताद हैं, हम जिस वक्त हैदरगढ़ के अंदर पढ़ रहे थे, उनका बाप मजदूरी कर रहा था, सर पे मिट्टी ढोता था लोगों के घरों में। मौलाना
कीजिए। लेकिन उसके बाप ने कहा कि बेटा यही काम करके आज मैं तुझे इस मकाम पर पहुंचाया हूं, आज मैं इस काम से जो है कि कैसे नाता तोड़ लूं। तो जब वो फरमा रहे थे कि जब मैं पहली बार हाफिज बन के आया और एक ऐसी मस्जिद में हमें तरावी सुनाने के लिए जगह मिली जहां डॉक्टर भी था, इंजीनियर भी था, वकला भी थे, बड़े बड़े सरमायादार भी थे, वो फरमा रहे थे, जब मैं मिंबर पे गया और पेश इमाम पे जब खड़ा हुआ, उस वक्त मेरे दिल में ये आया कि ये क्या एजाज अल्लाह ने दिया है कि आज मैं खड़ा हूं आगे में और मेरे पीछे बड़े बड़े सरमायादार हैं और सर झुका करके मेरी क़यादत को तस्लीम कर रहे हैं। अगर इसी जगह मेरा बाप खड़ा हो जाता तो मेरे बाप को ये लोग धक्के मार करके भगा देते। तो मुसलमानों, इल्म दीन को कमजोर मत समझो। याद रखो, हमारे अकाबिर में से किसी ने कहा था कि मदारिस के बच्चे अगर कहीं से नहीं हो सके, शेखुल हदीस बन नहीं सका, कहीं अच्छी नौकरी नहीं भी मिली, तो वो किसी मकतब में कौम के नौनिहालों को संवार कर सींच कर अपनी भी जिंदगी गुजार लेंगे और कौम को भी फायदा पहुंचा देंगे। इसी तरह से जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब ने जो इदारा खोला है और बिल्कुल मुख्तसर तौर पर वक्त में इस इदारे को एक अज़्म के साथ जो लेकर के चला है, आप सब उनका साथ दें और गाए गाए उनकी मदद करें। और आप ये ना कहें कि इस मदरसे के अंदर फीस का इंतजाम है। याद रखो, एक बहुत बड़ा स्थान यहाँ है इस कुल्हैया बिरादरी के लिए। मैं कहूंगा, क्योंकि मैं भी इसी कौम का बेटा हूं, आप हाथ उठा करके बता दीजिए कि कुल्हैया बिरादरी में कौन बुजुर्ग पैदा हुआ। मुझसे सवाल किया गया था कहीं कि बताओ कुल्हैया बिरादरी में किसी बुजुर्ग का नाम बताओ। या तो नजर में नहीं है, अगर है तो छुपा हुआ होगा। क्यों नहीं है? इसलिए कि हम अपने बच्चे को या तो दीन की तालीम देते नहीं है, और अगर देते हैं तो क्या करते हैं? ज़कात का माल, सदके का माल, और क्या करते हैं? बड़े बड़े पैसे वाले हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे को मदरसा में ले जाएंगे, वो क्या करेंगे? सदके के ऊपर मुनहसिर रहेंगे, फीस नहीं देंगे। आप हज़्म कीजिए कि आप अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे और अपने जेब खास से बनाएंगे। मौलवी साहब से कहिए कि हॉस्टल का खर्च कितना हुआ, मुअल्लिम का खर्च कितना हुआ, रूम का खर्च कितना हुआ, सब कुछ जोड़ करके आप अगर अपने बच्चे पे लगाएंगे, एक बच्चे को आप कॉन्वेंट में पढ़ाइए, एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाइए। मैं अपने इन अकाबिर की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह करके जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब आपका वो बेटा जिसके ऊपर आप खर्च करेंगे, उसको अल्लाह तबारक व तआला ऐसा निखारेगा कि वो आपको दुनिया में भी सरबुलंद करेगा और आखिरत में भी जो है कि कामयाबी से आपकी नैया को पार लगाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हजरात, मुख्तसर मगर जामे खिताब था हजरत मौलाना नसीम अख्तर नदवी साहब दामद बरकातुहुल आलिया का। इंशाअल्लाह हम और आप उनकी बातों पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे और उनको अमल जमा बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अब वो खुशनुमा मंजर जिसके लिए आज की ये बज़्म आरास्ता की गई है और इतना खूबसूरत पिंडाल सजाया गया है और दूर दराज के उलमा को जहमत दी गई है आज के इस प्रोग्राम से खिताब करने के लिए, वो मंजर अब आपकी निगाहों के सामने आने वाला है। लेकिन हम अपने उन भाइयों से गुजारिश करेंगे जो किनारे खड़े हैं, वो या तो आकर के बैठ जाएं, और जो हजरात किनारे खड़े बैठे हैं और बीच में जगह खाली है, उन हजरात से गुजारिश करेंगे कि आप लोग आगे खिसक करके उस खाली जगह को पूरी कीजिए। आप ही हजरात से कह रहे हैं, वहां जो टेक लगाए हुए खड़े हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, वहां पिंडाल के उस किनारे में, हाँ आगे बढ़िए, चलिए उठिए, आगे आगे।